تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ زندہ اپنی جلالی خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ خداوند آج اے خداوند یہ تو نے ممکن کیا کہ آج اے خداوند تیرے وہ صلیبی کلمات جو تو نے اپنی زبان مبارکہ سے اے خداوند صلیب پر ادا کی، اے خداوند ہم ناچیز اے خداوند بندے ہوتے ہوئے اے خداوند ان تیرے کلمات کو اے خداوند یاد کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے نجات کا سبب بنے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج اے خداوند جو بولوں اے خداوند تیرے پاک روح کی ہدایت سے اے خداوند بولوں، اے خداوند تو اے خداوند میری زبان اے خداوند پہچان، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج مجھے خدا نے چوتھا کلمہ جو ہے وہ بولنے کا شرف عطا کیا ہے۔ چوتھا کلمہ متی کی انجیل 27 باب اس کی ہم 46 اور 47 آیت کا ہم نے مطالعہ کیا اور ہم نے دیکھا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر ہم اس کی 47 آیت میں اس کا بھی مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میرے عزیزو، پاس کھڑے لوگ کچھ یہ سمجھ رہے ہیں، پاس کھڑے لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید کس کو پکار رہا ہے؟ ایلیا کو پکار رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح کہ ہم پس منظر پر جائیں، یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے کیا فرماتے ہیں؟ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کیا کرتا ہوں؟ کچھ نہیں کہتا۔ باپ مجھ میں رہ کر کیا کرتا ہے؟ اپنے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم ان الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں خداوند یسوع مسیح کس کو؟ ایلیا کو نہیں بلکہ خدا یعنی اپنے باپ کو پکار رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں صرف انسان نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح جسمانیت سے نہیں پیدا ہوئے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کس سے پیدا ہوا ہے؟ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے کیا نکلا ہوں؟ باپ میں سے نکلا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب وہ بدن جو کلام مجسم ہوا ہے میرے عزیزو، وہ کلام یوحنا کی انجیل پہلے باب میں اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ خدا تھا۔ ہاللیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ آسمان پر نہیں گیا، صرف وہ جو زمین پر کیا ہے؟ اترا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو وہ میرے عزیزو ایلیا کو نہیں بلکہ وہ کلمہ جو مجسم ہو کر آیا ہے، وہ کلمہ جو ہمارے درمیان جس نے اختیار کیا ہے، وہ کلمہ جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر جسم لیا اور ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے کیا ہوا؟ قربان ہوا۔ وہ کلمہ آج جسم کی حالت میں ہوتے ہوئے، جسم
किया। मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इंसानी बदन में इस दुनिया में आए, इस दुनिया में कलाम मुजस्सम हुआ, तो मेरे चीज़ों जब खुदावंद यीशु मसीह कई बार अपनी ज़ुबान मुबारका से ये कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन ऐ बाप क्या हो, तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ये अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारका से अदा कर रहे थे, तो मेरे चीज़ों उस यीशु मसीह का जो पसीना था वो क्या होता था, खून बन बन कर क्या होता था, तब तो मेरे चीज़ों वो जिस्म रखते हुए, वो कलमा जो जिस्म रखते हुए मेरे चीज़ों इंसानी बदन में मेरे चीज़ों हमारे लिए जो है वो सलीब पर मेरे चीज़ों कुर्बान हो गया और हमारे गुनाहों का जो है वो फिदिया दे दिया। मेरे चीज़ों जब हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो इंसान का जो है वो गुनाह, जब मूसा को शरीयत दी गई, जब अब्राहम को कहा गया कि तू एक बैल जो एक बछड़ा लेना और तुम क्या करना, उसको ज़बह करना, तो मेरे चीज़ों इंसान ने गुनाह किया और उसका जो है वो कफारा जो है वो पुराने आदम में हम देखते हैं कि वो बैल और बकरे की अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरे चीज़ों इंसान का गुनाह जो है वो बैल और बकरे में चीज़ों अदा नहीं कर सकते। इंसान का गुनाह वो बेऐब बरा, यानी जिसमें गुनाह शामिल ना हो वही अदा कर सकता था। देखिए अगर सब ने गुनाह किया खुदा के जलाल से क्या हो गए, महरूम हो गए, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह वो ऐब बरा है, जो खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारका से भी कहते हैं कि कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। हालेलुया। मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि यीशु मसीह में कौन गुनाह साबित कर सकता था, कोई नहीं। मेरे चीज़ों जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर वो बेऐब बरा, हमारे गुनाहों की खातिर कलमा मुजस्सम हुआ, यानी खुदा ने जो है इंतज़ाम कर दिया हमारे गुनाहों की खातिर, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे चीज़ों वो कलमा जो हमारे लिए मुजस्सम हो गया, वो कलमा जिसने हमारे गुनाहों की खातिर मेरे चीज़ों वो बेऐब बरा, मेरे चीज़ों जिसने अपने ऊपर हमारे गुनाहों को उठा लिया। मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि जब वो बदन जो बेऐब था, जो बेगुनाह था, मेरे चीज़ों उसने क्या किया कि हमारे गुनाह जो कभी धुल नहीं सकते थे, जो कभी माफ़ नहीं हो सकते थे, जो कभी उसकी मुखलसी नहीं हो सकती थी, तो मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह यानी कलमा मुजस्सम ने, हम देखते हैं कि आप कहा कि मैं आया हूँ ताकि तुम्हारे गुनाहों का फिदिया दूँ। हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे, जब हमारे गुनाहों का कोई फिदिया नहीं दे सकता था, मेरे दोस्तों जब हमारे गुनाहों का कोई कफारा नहीं दे सकता था, तो खुदावंद यीशु मसीह कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमारे गुनाहों का जो फिदिया खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो है वो अदा किया। हालेलुया। वैसे तो हम देखते हैं कि ज़बूर 22 में हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये जो है एक तलावत अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरे चीज़ों कलमा मुजस्सम मेरे चीज़ों वो तलावत नहीं बल्कि उसकी पेशन गोइयां ज़बूर 16 बाब में लिखा है कि वो मेरे जिस्म को छेदेंगे, वो मेरे जिस्म मेरे जो है टुकड़ा डालेंगे, मेरे जो है वो बदन को छेदेंगे और मेरी पसलियां जो है वो उनको जो है वो नहीं तोड़ेंगे। तो मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि हम वो कलमा मुजस्सम जो हमारे गुनाहों की खातिर मेरे चीज़ों बदन की हालत में मेरे चीज़ों वो बदन जो कमज़ोर हो चुका है, वो बदन जो मेरे चीज़ों दुख की हालत में है, वो कलमा मुजस्सम मेरे चीज़ों जो हमारे खातिर जो सलीब पर मेरे चीज़ों कुर्बान हो रहा है, जिसमें कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता था, जिसमें कोई मेरे चीज़ों बेऐब बरा था, मेरे चीज़ों वो हमारे खातिर क्या हुआ, लानती बना, वो हमारी खातिर मेरे चीज़ों गुनाहगार ठहरा, वो हमारी खातिर उन सलीब पर डाकुओं में जो गुनाहगार थे उनके बीच
बादशाह है। मेरे चीज़ों हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह उस दुख की हालत में, उस जो है वो परेशानी की हालत में मेरे चीज़ों एक जिस्म रखते हुए मेरे चीज़ों खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, क्या है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे चीज़ों वो हमारी खातिर मेरे चीज़ों छोड़ा गया, उसने हमारी खातिर जो है अपने गुनाहों अपने आप को जो है वो पेश कर दिया ताकि हमारे गुनाहों का क्या हो फिदिया हो। मेरे चीज़ों आज हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है कुर्बान होकर भी मेरे चीज़ों हमको मेरे चीज़ों फिदिया दे दिया है मेरे चीज़ों, लेकिन हम कितने अपने गुनाहों को जो है वो यीशु मसीह पर जो है वो अपनी रोज़ सलीब उठाते हैं। मेरे चीज़ों रोज़ सलीब मेरे चीज़ों उठाने का मकसद है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान हो गया, जब उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया, वो कलाम मुजस्सम हो गया और उसने हमारे गुनाहों का जो है वो फिदिया दे दिया, तो मेरे चीज़ों आज हम फिर मेरे चीज़ों अपने गुनाहों को जो है वो दोहराते रहते हैं साल ब साल। मेरे चीज़ों वही कुर्बानियों को जो बनी इस्राइल में मेरे चीज़ों कुर्बानियाँ होती थी, लेकिन मेरे चीज़ों मेरे और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, एक ही बार कुर्बान होकर क्या कर दिया, अब्दी खलासी करवा दी। बैल और बकरे मेरे चीज़ों वो जब दो बकरे लिए जाते थे, एक को क्या किया जाता था, बियाबान में छोड़ दिया जाता, एक को जो है वो कुर्बान करके जो है कि संदूक पर जो है वो अंडेला जाता था। लेकिन मेरे और खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बार जो है वो कुर्बान होकर पाकरीन मकाम में क्या हुआ, वो शामिल हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन।